Good evening to everyone. Now, today we will preach the miracle of Jesus Christ, the first miracle he did in the marriage of Cana Galilee. So, uh, let's start. Yeah, okay. As we mentioned that the Lord Jesus Christ has done thousands and thousands of miracles. तो इसमें हम जिक्र करेंगे कि खुदा यीशु मसीह ने हजारों के हिसाब से मौजूदात किए, But only registered and recorded in the four Gospels 35 miracles that Jesus has done. लेकिन अंजील मुक़द्दस में 35 मौजूदात का जिक्र हमें मिलता है. The reason for that, he set before us an example of this miracle that he is the Messiah, Son of God. तो इसमें एक ख़ास चीज़ ये मिलती है कि यीशु मसीह एक मसीहा है. So, today we're going to start with the first miracle that Jesus, the Lord, has done. आज हम पहले मौजज़े का जिक्र करेंगे जो खुदा यीशु मसीह ने किया. This miracle is only mentioned in the book of John, ये मौजज़ा सिर्फ यूहन्ना की अंजील में दर्ज है. in chapter 2. यूहन्ना की अंजील उसके दूसरे बाब में. When the Lord Jesus started his ministry, he went to Judea and he was baptized by John the Baptist. जब खुदा यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज किया तो उन्होंने यहूदा में यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया. And from there, he set his face into the wilderness. He went into the wilderness to meet devil and defeat him with his trials. तो उसके बाद खुदा यीशु मसीह जंगल में गए ताकि वहाँ पे वो अबलीस को शिकस्त दे सके. Later on, the Lord Jesus started gathering, calling his disciples. उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को इकट्ठा करना शुरू किया. तो बहुत सारे लोग भी खुदा यीशु मसीह के पास आते रहे. From the book of John, we can see at the start that he collected 4 disciples at the start. यूहन्ना की इंजील के शुरू में हमें पढ़ने को मिलता है कि सबसे पहले खुदा यीशु मसीह ने 4 शागिर्दों को इकट्ठा किया. Andrew and Peter, John and James. इंद्रियास और पतरस, James and John. याकूब और यूहन्ना. Then after that, he met Philip, उसके बाद फिलिप को मिले and then Philip brought Nathanael to the Lord. और उसके बाद फिर नथानिएल खुदा यीशु मसीह को मिले. Then the Lord went into his ministry to Cana Galilee in Galilee. जब खुदा यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में काना गलील की शादी में गए, There was the wedding. वहाँ शादी हो रही थी. Jesus and his disciples were invited there. खुदा यीशु मसीह और उनके शागिर्दों को वहाँ पे दावत दी गई थी. John chapter 2 reminds us with Genesis chapter 2. यूहन्ना की इंजील उसके दूसरे बाब में और पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब में. Because in Genesis chapter 2, God created Adam and it was not good Adam alone, and then created Eve for him. यूहन्ना के पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब में हमें मिलता है कि सबसे पहले खुदा ने आदम को पैदा किया, फिर खुदा को ये अच्छा लगा कि उसके साथ उसका साथी भी बनाया जाए. So God at the beginning established the family and blessed it. शुरू में खुदावन ने एक खानदान बनाया. Because Jesus is God as well, इसमें कोई शक नहीं कि खुदा यीशु मसीह खुदा भी हैं. he went into the wedding and blessed the wedding as God has done in Genesis chapter 2. और खुदा यीशु मसीह ने भी काना गलील की शादी में जोड़े को बरकत दी, जिस तरह खुदा ने आदम और हवा का जोड़ा बनाकर उनको बरकत दी. This miracle is very specialized that it is the first miracle that Christ has done. ये शादी इसलिए भी बड़ी अहम बन गई कि खुदा यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा उस शादी में किया. Where Jesus was invited with his disciples
and his mother was as well. और उस शादी में खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों को दावत दी गई और इसके साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम को भी वहाँ पे दावत दी गई. Also, Jesus blessed the families. He was happy with the marriage, the true marriage. खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ खानदान को भी बरकत दी और जोड़े को भी बरकत दी, इसलिए ये शादी बड़ी अहम है. Exactly the same as in Genesis chapter 2 when God said, "Let man leave his father and mother and cleave unto his wife, and the two become one." इसलिए पैदाइश की किताब में लिखा है कि आदमी अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा. Therefore, every wedding will be blessed when Jesus Christ is the center of that marriage. इसलिए हर शादी जो है वो बाबरकत बन जाती है जब उसका मरकज खुदावंद यीशु मसीह बन जाता है. Now, Jesus is in the wedding, and the wedding is beautiful. Everybody is available there. Many people are invited. वो शादी इसलिए भी अहम थी कि खुदावंद यीशु मसीह भी वहाँ पे उनको दावत दी गई थी और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे, उनको दावत दी गई थी. All of a sudden, the wine ran out. There was no more wine in the wedding. एकदम हम जिसे कहते हैं कि अचानक मैं ख़त्म हो गई तो अभी बहुत सारे लोग बाकी रहते थे. It was a big problem for the family of the wedding, for the groom and the bride. इसलिए ये एक शादी वाले ख़ानदान के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई क्योंकि अभी दुल्हा अभी बाकी रहता था. It was like a scandal. It's very embarrassing before all the invited people. तो आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि अगर खाने की कमी हो जाए तो आपको पता है कि लोग फिर क्या क्या किस तरह से हरास करना भी शुरू कर देते हैं कि इनके पास कुछ नहीं वगैरह वगैरह. We see here Mary, the mother of Jesus, interfere into the problem. और वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम ने मुदाखलत की और उन्होंने ही खुदावंद यीशु मसीह को इसके लिए तैयार किया. Because she knows who is her son, who is Jesus, and she knows that he has a lot of power. क्योंकि मुकद्दसा मरियम जानती थी कि यहाँ उनका बेटा यीशु मसीह है और उसमें ये कुदरत है ये सब कुछ करने की. That's why she said to him, they don't have wine anymore. इसलिए उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि इनके पास मैं ख़त्म हो गई है. Interestingly, the Lord Jesus stopped Mary by saying to her, "What is your concern with me, women?" इसलिए ये यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प बात हमें मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम से कहा कि आपको मुझसे क्या. And he said to her, "My hour has not yet come." और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं है. He wanted to say that he moves according to the time of God, his Father. वो चाहते थे कि अभी खुदावंद की तरफ से मुझे ये नहीं मिला. He take instruction of God the Father only. क्योंकि वो सिर्फ अपने खुदा आसमानी बाप से हर चीज की हदायत लेते थे. Jesus said, "I always do my Father's will." खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो करता हूँ जो मेरा खुदा चाहता है, जो मेरा बाप चाहता है. In fact, he said, "My food is doing my Father's will." इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे खाने का इंतजाम भी मेरा खुदा करता है. So, with all respect, the Lord Jesus stopped Mary not to interfere because he knows when he can do the things. इसलिए यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को मना कर दिया कि आप ये काम ना करें. He still respected her when he said to her, "Women." वो उनकी बहुत इज्जत करते थे. वो उन्हें औरत कह के पुकारते थे. We see the Lord Jesus 2 times says to his mother, "Women." This was the first time. तो खुदावंद यीशु मसीह ने 2 दफा अपनी माँ मुकद्दसा मरियम को औरत कह के पुकारा और पहली दफा ये शादी के मौका पर उन्होंने औरत कह के पुकारा अपनी माँ को. The other time he said to his mother, "Women,"
when he was hanged on the cross. और दूसरी दफा उन्होंने खुदा यीशु मसीह ने अपनी माँ को मुकद्दस मरियम को औरत कह के पुकारा जब वो सलीब पर लटके हुए थे. He said to her, "Women, behold your son," naming to John, son of Zebedee. और खुदा यीशु मसीह ने कहा ये है तेरा बेटा. यूहन्ना रसूल को कहा और यूहन्ना रसूल को कहा कि ये है तेरी माँ. The word women, it is respectable, meaning like lady. औरत लफ्ज जो है ये बड़ी इज्जत के लिए किसी को कहा जाता था, स्पेशली एक खातून को. Now, as we said, always Jesus does the miracles to satisfy the need for a reason. He doesn't make a show off of the miracles. खुदा यीशु मसीह ने वहां पे उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए ये मौजज़ा किया, ना कि वहां पे वो जिस तरह कहते हैं कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए किया. And in this situation, it was very important that the Lord Jesus would do something because there is a need to help this family. ये वहां इसलिए भी बहुत एक जरूरी बन गया था कि खुदा यीशु मसीह की उस खानदान की जरूरत को पूरा करने के लिए अब ये करें. The Bible says in the wedding there was 6 water jars, big water jars. अंजील मुकद्दस से में पता चलता है कि वहां पे 6 बड़े मर्तबान पड़े हुए थे. Each water jar takes about 75 to 100 liters of water. हर एक मर्तबान में 70 से 100 लीटर तक पानी भरा जा सकता था. There was 6 of them. और वो वहां पे 6 थे. They were empty. और 6 के 6 खाली थे. They used to use them for filling them with water, and they cleaned the Jewish people themselves for purification to do any action. और उन्होंने वो पानी से भर दिया उन 6 मटकों को, और यहूदियों ने अपने आप को पाक किया. So the Lord Jesus said to the servants, "Fill the water jars with water." और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि आप इन मटकों को पानी से भर दो. And they were filled, the 6 of them. और उन्होंने 6 के 6 मटके पानी से भर दिए. We can see in the book of John, speaking about Jesus Christ is God who appeared in flesh, in human. यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये कहा गया है कि वो खुदा था, लेकिन इंसानी रूप में, इंसानी जिस्म में वो हमारे पास आया. And we can see how the Lord showed his divine nature in doing this miracle. और यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने एक पावरफुल होने का वहाँ पे सबूत दिया. He said, "Fill the water jars with water." उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मटकों को पानी से भर दो. And then he said, "Draw out, take out of the water jars and give to the people." Yes. और फिर उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं उसमें डाला, ना कोई, सिर्फ इतना ही कह दिया कि अब इनमें से लो और मेहमानों को देना शुरू कर दो. He didn't say a word, but he changed it without doing anything because he is God. उन्होंने सिर्फ कहा, जुबान से कह दिया, और वो सब कुछ हो गया क्योंकि वो खुदा थे. खुदा जैसी पावर उनमें थी. The water in the jars instantly turned on into a good wine. और वो पानी इतनी अच्छी में बन गया हुआ था. You know, the natural circle of creating a wine from water takes seasons, maybe months or up to 6 months. और इस तरह की मैं बनाने में 1 महीने से 6 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन वो पानी जिसको खुदा यीशु मसीह ने मैं बनाया था वो उससे भी कहीं अच्छा था. So the water comes from heaven rainy. क्योंकि पानी आसमान से बारिश की तरह आता है, goes into the underground, फिर उस ज़मीन के अंदर चला जाता है. and the roots of the vine, the vineyard, the vines will suck the water. और फिर अंगूर की बेल जो है
वो पानी वो जज़ब अपने अंदर कर लेती है. The water will go into all the cells in the nutrients of the vine, and then they will start growing fruits, bringing the grapes. फिर वो पानी पूरी उस बेल में जज़ब हो जाता है, पूरी उसकी टहनियों में, फिर उसके साथ जो फल लगता है उसमें जज़ब हो जाता है, और फिर वो फल अंगूर बन जाते हैं. This process in natural takes between 3 to 6 months from water coming from heaven and going into the vine until the grapes are created. तो इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल होने में 6 माह लगते हैं. जब बारिश आसमान पर से आती है, वो ज़मीन में जज़ब होती है, फिर वो बेल में जज़ब होती है, बेल पर वो बूर लगता है, और फिर वो बूर अंगूर बन जाते हैं. तो इस सारे प्रोसेस को पूरा होने में 6 माह लगते हैं. And then the vineyards, the people who works in the vineyards, the workers, they start collecting all the grapes and putting them in the wine press and pressing them to get all the juice of the grape. फिर जो वो अंगूरों के बाग में काम करते हैं, उन्हें पता है कि फिर वहाँ जो काम करने वाले हैं वहाँ पे वो अंगूर तोड़ते हैं, उनको फिर एक जगह पे इकट्ठे करके, जैसे वो वाइन यार्ड में उसमें प्रेस करते हैं, फिर उनसे मैल निकलती है. And they keep the wine juice into jars and they close it so that it will be fermented until it turns into wine. Takes that process about 6 months. फिर जब वो बर्तनों में यानी जार्स के अंदर वो जूस निकाल के उसको बंद करके फिर रख दिया जाता है, फिर 6 माह के लिए इंतजार करना पड़ता है कि 6 माह के अंदर अंदर फिर वो अंगूरों का जूस मैल बन जाती है. Jesus done that instantly in America. तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे ही आंख झपकते में वो सब कुछ कर दिया. From water into pure wine. पानी से एक प्योर खालिस किस्म की मैं बना दी. He said, Jesus, to the servants, give to the master of the wedding, the person who is the elder in the wedding. तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब जो वहाँ पे बड़े बड़े बैठे हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इन सब को पेश करो. This guy, when he drank the wine, he was surprised how good and tasty was that wine. जिसने भी वो मैं ली, उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की कि वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी है. And he said, where is the groom? I want to talk to the groom. तो फिर उन्होंने कहा कि दुल्हा कहाँ है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ. He said to the groom, usually in weddings, they put the bad wine at the beginning so that people will, the good wine in the beginning, so that people will drink it. And once they get drunk, if you put bad wine at the end, nobody knows because they are drunk. क्योंकि वो उन्होंने कहा कि पहले तो हमें इतनी अच्छी मैं नहीं दी गई, तो चूंकि वो लोगों ने पी ली थी, इसलिए उनका मन नहीं कर रहा था कि मैं पीने को. उन्होंने कहा कि ये अच्छी मैं आपने कहाँ पे रखी हुई थी. So he said, but you did the opposite. उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल इसके उल्ट हुआ है. Because you put first the bad wine and now you're giving us at the end of the wedding the good wine. उन्होंने कहा कि पहले तो आपने हमें अच्छी मैं नहीं दी, और बाद में आपने अच्छी मैं हमें दे दी है. See, the world give first the good wine and then they give the bad wine. पहले बुरी मैं और बाद में अच्छी मैं. That's what the world does. That what? The world give good wine so that people like sin doing things and then it becomes bad for them in the world. Yeah. पहले sorry. I will explain. The world gives good things at the start for people because he wants to attract them in sin, in doing things. पहले लोगों ने वो उनको चेक करने के लिए बुरी जो मैं दी थी, उनका टेस्ट उन्हें वो बुरा लगा, जो बाद में दी गई वो उन्होंने पसंद किया. But at the end for these people it will be very bad because they're going to go to hell.
तो इसी तरह दुनिया जो है उससे भी जो जो कुछ पहले दिया जाता है या जो कुछ वो पहले लेंगे, सारी दुनिया वो अच्छा नहीं होगा, जो उन्हें बाद में मिलेगा वो अच्छा होगा। But Jesus gives peace when you come to him. लेकिन खुदाम यीशु मसीह अमन देते हैं जो उनके पास आते हैं, And bring joy in your life always. और खुदाम यीशु मसीह फिर उनकी जिंदगियों में हमेशा के लिए खुशियां भर देता है। Now, it is not an encouragement for us that we bring wine and drink wine as Christians because of this miracle. ये हमारे लिए कोई हौसला अफजाई की बात नहीं है कि हम बतौर मसीही मैं पिए, Because it was a tradition in the Jewish culture that they used the wine. ये उस वक्त का एक यहूदी एक कल्चर था, ये उनका उनकी एक रस्म थी, एक रिवाज था कि वो शादी के मौका पर मैं का इस्तेमाल करते थे, Because the wine, it's a symbol of joy. क्योंकि मैं एक खुशी की अलामत समझा जाता था। That's why us as a Christian, our joy is not in the wine. लेकिन बतौर मसीही हमारी खुशी मैं में नहीं है, But it is in the Holy Spirit. लेकिन हमारी खुशी पाक रूह में है। The Bible in Ephesians says, Paul says in chapter 5 in Ephesians, says, do not be drunken in wine, but rather be filled with the Holy Spirit. पौलुस रसूल इफिसियों के खत 5 बाब में लिखते हैं कि मैं के मतवाले ना बनो। So the true joy that comes from inside outside, असल खुशी जो है वो अंदर से बाहर आती है, and that Jesus can give. एंड वो खुशी मेरे अजीज सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह दे सकते हैं। Jesus did the miracle and turned the water into wine. खुदा यीशु मसीह ने पानी को मैं बनाया। There were in the wedding 6 water jars. वहाँ पे 6 पानी के मर्तबान थे, They were empty, वो खाली थे, but they were filled with the water, लेकिन उनको पानी से भरा गया and the water changed into wine. और वो पानी मैं में तब्दील हो गया। Every man is empty like that water jar. इसी तरह हर इंसान उन पानी के बर्तनों की तरह अंदर से खाली है। Without the water, the word of God, the Bible, empty. और Without the water, which is the word of God, the person is empty. अगर वो पानी अंदर ना जाए जो कलाम मुकद्दस है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है कि मैं जिंदगी का पानी हूँ, अगर खुदा का कलाम अंदर नहीं जाता तो अब आप समझे कि हमारे अंदर पानी नहीं है। When you read the word of God, you take the pani of God. जब आप कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो फिर आपको रूहानी पानी जो है आपके अंदर जाता है। Then that word of God will bring joy like that wine. फिर वो कलाम मुकद्दस जो हमारे अंदर जाता है वो हमें एक अजीब सी खुशी देता है। In John chapter 2, the miracle of turning water into wine. यूहन्ना के 2 बाब में हमने पढ़ा है कि वो पानी फिर मैं बन गया। 6 jars empty. 6 मर्तबान खाली थे। Interesting, Jesus in book of John meet 6 people. They were like these 6 water jars empty. खुदा यीशु मसीह 6 लोगों को मिले और 6 मर्तबान पानी के खाली थे। He meets in John chapter 3 Nicodemus. चैप्टर 3. तीसरे बाब में वो निकोदेमुस को मिले। In chapter 4 he meets the Samaritan lady. और चैप्टर नंबर 4 में वो सामरी औरत से मिले। In chapter 5 meets the paralyzed person at the pool of Bethesda. और 5वें चैप्टर में वो एक अपाहज इंसान से मिले। In chapter 8 he meets the woman caught in adultery. और चैप्टर 8 में वो उस औरत से मिले जो एन फेर के वक्त पकड़ी गई थी। In chapter 9 he meets the man blind from his birth. और चैप्टर 9 में वो एक अंधे इंसान से मिले जो पैदाइशी तौर पर अंधा था। In chapter 11 he meets Lazarus in the grave dead. और चैप्टर नंबर 11 में वो लाजर को जो खुदा यीशु मसीह के दोस्त भी थे वो उन्हें कब्र
में मिले। 6 water jars empty, 6 पानी के मर्तबार खाली थे symbol of 6 persons with different characters empty. और ये 6 लोग मुख्तलिफ किरदार के लोग जो अंदर से खाली थे। When Jesus come in your life, जब खुदा यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है you will have the water of life. तो हमारे अंदर भी वो जिंदगी का पानी आ जाता है। You will have the true joy like the wine. तो फिर हमारे अंदर एक अब्दी खुशी उस मैल की तरह आ जाती है। That's what Jesus did in the first miracle, and it was the first miracle before the disciples to believe. और ये इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने ये पहला मौजज़ा किया अपने शागिर्दों के सामने। Amen. I'm done. You can. आमीन। तो अब हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं आज के इस खूबसूरत मैसेज के लिए जो तूने अपने खादम पास्टर रोनी के ज़रिए हम अपने लोगों तक पहुंचाया। ऐ बाप, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ जिन्होंने आज तेरे जिंदा कलाम को सुना है, तो खुदावंद उनकी रूहानी आंखों को खोल, उनके खुदावंद उनके अंदर एक खुदावंद रूहानी तड़प पैदा कर, ताकि वो अपने अपने अंदरों को इसी तरह खाली करें और खुदावंद का कलाम सबके अंदर जाए, ताकि खुदावंद उनके अंदर से भी एक अजीब खुशी जो आज तक उन्हें नहीं मिल सकी वो मिले। ऐ बाप, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मेरे मसीही बहन भाई हैं, आज ऐ बाप तू सबको छू, सबको बरकत दे। जिस जिस चीज़ की तेरे लोगों के पास कमी है, मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तो अपना आसमान आज सबके लिए खोल और सबको हर किस्म की रूहानी जिस्मानी बरकतों से माला माल कर। पूरी दुनिया में खुदावंद तू अमन और सुलह की फिजा को कायम कर, ताकि तेरे लोग खुदावंद खुश रहें। और जहाँ पे मेरे मसीही बहन भाई खुदावंद परसिक्यूशन का शिकार हैं, तो खुदावंद अपने लोगों को संभाल। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले लेकर संभालती है, इस तरह खुदावंद तो अपने लोगों पर अपना फजल भरा हाथ बढ़ा, सबको संभाल और उनकी हर ज़रूरत को खुदावंद तो पूरा कर। मेरी इस दुआ को सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा। ये दुआ मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। Thank you very much, Pastor Rooney. God bless you and God use you abundantly for His grace. Thank you. We pray Amen. for each other. Amen.